بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو انتہائی خاص ہے اور میں درخواست کروں گا، میں درخواست کبھی بھی نہیں کرتا لیکن میں درخواست کروں گا کہ آپ نے ہر پوائنٹ کو ہی غور سے سننا ہے، کیونکہ اگر آپ ایک پوائنٹ بھی مس کر دیں گے تو ویڈیو ضائع ہو جائے گی آپ کی۔ لہٰذا آپ نے اینڈ تک لے کے جانا ہے اور ویڈیو کے ہر پوائنٹ کو سمجھنا ہے، تبھی آپ کو وہ جواب ملے گا جو آپ سوال کرتے ہیں کہ ہمارا جو سکسیس ریشو ہے ویزا ملنے کا وہ زیادہ کیوں ہے۔ اور اگر آپ اس کو خود بھی کرنا چاہیں اور یہی فارمولہ اپلائی کریں تو آپ کا بھی سکسیس ریشو آئے گا، ٹھیک ہے۔ نقصان نہیں ہے کوئی، دیکھنے میں فری ہے کنٹینٹ، تو دیکھ لیجئے۔ یہاں پر میں نے وہ تمام پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں اپنے سامنے جو آپ کو سپورٹ کریں گے ٹو گیٹ دا ویزا، اور بہت بڑے چانسز کے ساتھ۔ یعنی کہ کوئی بھی ملک اٹھا لیں آپ، کوئی بھی یورپین، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، کینیڈا، کوئی بھی ملک اٹھا لیں، آپ کے چانسز جو ہے وہ پہلے سے کئی زیادہ ہوں گے۔ یہ ویڈیو آپ کو بہت فائدہ دینے والی ہے۔ سب سے پہلے جو آپ جن باتوں کا آپ نے ادراک کرنا ہے، خیال کرنا ہے اور اس کو اسی طریقے سے کرنا ہے جس طرح میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں، تو چانسز آپ کے جو ہے وہ 90% سے اوپر چلے جائیں گے۔ ادروائز میں گارنٹی نہیں دیتا یہاں پر۔ اور ہم کن باتوں کا خیال کرتے ہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنی ایج، اپنا ایکسپیرینس، تجربہ، عمر، ہر چیز جانتے ہیں آپ، جو میں ذکر نہیں کر رہا یہاں پر، آپ ہر چیز جانتے ہیں۔ تو جب جانتے ہیں تو اسی کے مطابق آپ نے اپنے لیے ویزے کا انتخاب کرنا ہے، کیٹیگری کا انتخاب کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، کس کیٹیگری میں جانا ہے آپ نے۔ ایک یہ نہیں ہوتا مجھے آپ دبئی وہ لگزمبرگ بھیج دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں بھیج دیں، کیا کرنا ہے وہاں پر آپ نے، تو یہاں پر آپ نے کلیئر کرنا ہے، کہیں بھی آپ نے اپلائی کرنا ہے کہ وزٹ ویزا اپلائی کرنا ہے، ورک ویزا اپلائی کرنا ہے، اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کرنا ہے، بزنس ویزا اپلائی کرنا ہے، ری یونیفیکیشن اپلائی کرنا ہے، ٹرانزٹ اپلائی کرنا ہے، تو آپ نے جو آپ نے منتخب کیا اور جو واقعی آپ سے مطابقت رکھتا ہو اسی کیٹیگری میں اپلائی کریں۔ سب سے پہلے اپنی ایک مکمل اسسمنٹ کریں، ٹھیک ہے، ہو گیا۔ کیونکہ اگر آپ غلط کیٹیگری میں جائیں گے، اب آپ سوچئے نا کہ ایک آدمی ہے 45 سال کا ہے، 48 سال کا ہے، 50 سال کا ہے، 60 سال کا ہے۔ یاد رکھیے گا، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں میری ایج یہ ہے، یا آپ نے ایج نہیں بتائی۔ بات یہ ہے کہ ایج کچھ بھی ہو، کبھی ایج آپ کو فائدہ دیتی ہے، کبھی آپ کو ایج نقصان دیتی ہے۔ اٹس ڈیپینڈ آن دا کیٹیگری، ٹھیک ہے نا، کس کیٹیگری میں آپ جا رہے ہیں۔ اور غلط کیٹیگری میں اپلائی کرنے سے آپ کی ریجیکشن لازمی ہوتی ہے، یہ بات دماغ میں رکھیں گے۔ اگر نہ ہو تو سمجھ لیں کہ آپ بچ گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو معلومات دینی ہے اس کی تسلسل میں وہ معلومات رہے۔ یعنی کہ فار ایگزامپل آپ کا پاسپورٹ ہے، آپ کا بینک اسٹیٹمنٹ ہے، آپ کے فائنینشیل ڈاکومنٹس ہیں، آپ کے ملازمت کے ڈاکومنٹس ہیں، آپ کی پراپرٹی کے ڈاکومنٹس ہیں، آپ کے جو ٹیکسز کے ڈاکومنٹس ہیں، جو کچھ بھی ہیں، آپ کا درخواست فارم ہے، ان تمام کے اندر آپ کی معلومات سیم ہونی چاہیے۔ مطلب فار ایگزامپل اگر میں کہتا ہوں کہ جی ملک منور ظریف صاحب ہیں، تو ملک منور ظریف صاحب جو ہیں وہ کامنلی ان کو کہا جاتا ہے، یا وہ اپنے سی وی میں لکھتے ہیں یا وہ ڈاکومنٹ لکھتے ہیں، اور انہوں نے اپنی فائل بھی ملک منور ظریف سے بھر دی ہے، لیکن وہ آئی ڈی کارڈ میں کچھ اور ہے، پاسپورٹ میں کچھ اور ہے، اس طریقے سے کچھ اور چل رہا ہے۔ تو یو ہیو ٹو فالو دا پاسپورٹ نیم، یو کین سے، یا یو ہیو ٹو فالو دا آئی ڈی کارڈ نیم۔ یعنی کہ آپ نے جو پاسپورٹ ہے اس کو بنیاد بنا کر کے آپ نے اپنی فائل بھرنی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جو بھی معلومات ہے اگر آپ وہ غلط کر دیں گے تو پھر سمجھ لیجئے گا کہ آپ نے گویا ایسا کام کر دیا ہے کہ وہ آپ ریجیکشن مانگ رہے ہیں ان سے، ٹھیک ہے نا۔ تو نیم شوڈ بی سیم، کیونکہ آپ لوگوں کو چائنیز نام نہیں پتا، کورین نام نہیں پتا، فلپینو نام نہیں پتا، تو اگر وہ نام میں تبدیلی نظر آئے گی نا، مطلب مان لیجیے اس کے نام میں 3 نام آ رہے ہیں، مثال میں دے رہا ہوں آپ کو نا، نام نہیں بول رہے ہیں یہاں پر ہم، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر وہ 3 نام کی جگہ 2 نام ہوں گے، 4 نام ہوں گے، تو آپ بولیں گے یہ بندہ یہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وہ والی بات ہے۔ یہاں پر آپ نے دکھانا یہ ہے کہ آپ کا جو اسٹیبلٹی ہے نا، جو آپ کے اکاؤنٹ اسٹیبلٹی ہے وہ آپ نے شو کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر بھی خیال کرنا ہے آپ نے، وہ یہ ہے کہ بینک اکاؤنٹ میں آپ نے اچانک بڑی رقم نہیں ڈالنی۔ کچھ لوگ آپ کے کنسلٹنٹ کیا بولتے ہیں، یار آپ کے اکاؤنٹ میں ہے 9 لاکھ روپے، ایک کام کر 18 لاکھ اور 10 لاکھ اور ڈال دے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ہو جائیں گے 8 کا 18 ہو جائے گا، بہت مزہ آ جائے گا۔ یہ حرکت آپ نے نہیں کرنی ہے۔ تھوڑا ٹائم لے لو بینک اکاؤنٹ ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن آپ نے باقاعدہ آمدن، کاروبار، تنخواہ کے ثبوت، آپ کے کاروبار کے ثبوت، کاروبار کی بینک اسٹیٹمنٹ، کیونکہ بینک کی اسٹیٹمنٹ بھی دیکھیں، آپ کی اسٹیٹمنٹ بھی لگی ہوئی ہے۔ اگر آپ ملازم ہیں تو پھر آپ کی سیلری کے ساتھ آنی چاہیے نا، آپ کی سیلری جو بھی ہے 2 لاکھ 2.5 لاکھ جو کچھ وہ آنی چاہیے۔ 8 لاکھ آئے تو کہاں سے آئے، یو ہیو ٹو جسٹیفائی دیٹ نا۔ 10 لاکھ روپے آئے تو کہاں سے آئے، گاڑی بیچ دی، کیا کر دیا، تو اس کے کاغذات بھی لگا لیں، پھر تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن یو ہیو ٹو گیو دا پروف، ٹھیک ہے نا، رسیدیں
रसीदें देनी होती हैं यहाँ पर आपको। तो बाकी अगर आपने कारोबारी हैं तो आपने ज़्यादा तक कि बैंक स्टेटमेंट लगाई है तो वो भी ज़रूरी कि आप उसको लगाएं, ठीक है। उसके बाद अपने वतन से आपने मजबूत टाइज़ साबित करने होते हैं कि आप यहाँ से मजबूत टाइज़ रखते हैं। मुलाजमत, कारोबार, जायदाद या दीगर जिम्मेदारियों के सबूत आपको देने होते हैं। आपकी फैमिली के बारे में डिटेल देनी होती है। आपका FRC MRC लगता है यहाँ पर, क्योंकि आपका जो वीज़ा ऑफिसर है उसको आपने यकीन दिलाना होता है कि आई विल कम बैक, तो आप वापस क्यों आएंगे, ठीक है ना। तो वो चीज़ आपको इस पॉइंट नंबर 4 से कवर हो जाएगी। और उसके बाद हम आगे बात करेंगे नंबर 5 के ऊपर, मुकम्मल और मुनज़्ज़म फ़ाइल जमा करने का अमल। उसके अंदर तमाम दस्तावेज़ात वाज़े हों, काबिल पढ़ाई हों, तरतीब से लगाई हों, और इसके अलावा कवर लेटर शामिल हो जिसमें आप अपने सफ़र या इमिग्रेशन का मकसद वाज़ेह तौर पर लिखेंगे, ठीक है ना। और कोशिश करेंगे कि आपकी कहानी जितनी भी लंबी हो वो एक सफ़े के ऊपर सिमट के आ जाए। ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो कवर लेटर है ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन है, इसको आपने कभी ख़राब नहीं करना। इसके बाद आपकी जो सफ़र की तारीख़ है, मकसद है, उसको आपने वाज़ेह तौर पर बयान करना है, जिसमें होटल बुकिंग है, फ़्लाइट प्लान है, आपका इन्विटेशन लेटर है अगर है तो, जॉब ऑफ़र लेटर है अगर है तो, या यूनिवर्सिटी लेटर है अगर है तो, वट जो भी है वो तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट आपने लगाने भी हैं, वाज़ेह लगाने हैं, पढ़ने की शक्ल में हो, ठीक है ना। बाज़ लोग क्या कहते हैं मोबाइल में खींच लेते हैं, दिखा रहे होते हैं, वो नहीं मुनासिब, ठीक है ना। उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि आपका वास्ता पड़ सकता है एम्बेसी में इंटरव्यू से, आपका वास्ता पड़ सकता है एयरपोर्ट पे इंटरव्यू से, आपका वास्ता पड़ सकता है लैंड करने के बाद इंटरव्यू से कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं, कितने रोज़ क़याम करेंगे, किस होटल में रहेंगे, फिर कहाँ जाएंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे, तो ये बातें कहाँ पर थीं आपकी फ़ाइल में। तो वो फ़ाइल आपके पास है। अगर आप कहते हैं कि आई हैव नो आइडिया, ये तमाम बुकिंग तो मेरे एजेंट ने की है, तो बस फिर समझ लें कि आप वहाँ से डिपोर्ट होने के लिए उसको दरख्वास्त कर रहे हैं, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मुझे डिपोर्ट कर क्यों नहीं देते, ठीक है ना। मुल्क की इमिग्रेशन की पॉलिसी को समझना ज़रूरी है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, न्यूजीलैंड जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, तो आपने हर मुल्क की जो तरजीहात होती हैं उनको आपने पढ़ना होता है और उनके जो तकाज़े हैं उनको समझना होता है। अगर आप तकाज़े नहीं समझते तो ज़ाहिर सी बात है गोया कि आप अपने लिए ही मुसीबत खड़ी करेंगे। और उसके बाद आपने एक मुकम्मल अगर है तो एक बहुत ही डॉक्यूमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, उसको हम कहते हैं ट्रैवल हिस्ट्री। ट्रैवल हिस्ट्री में आप जब से आप पैदा हुए हैं उस वक्त से लेकर के अब तक आप कहाँ कहाँ गए हैं, ख़ासकर पिछले गुज़रे 5 साल की जो आपकी वीज़ा की जो पिक्चर्स हैं उसकी फ़ोटोकॉपी कीजिए। ये मत बोलें कि पासपोर्ट में है ना, देख लेगा वो, नो। ट्रैवल हिस्ट्री का डॉक्यूमेंट बनाइए, उसके अंदर तमाम वीज़ा लगवाइए और उनके ऊपर भी डेट लिखिए, और जो आपका इन आउट हुआ है उसको भी साथ में तस्वीर खींच करके साथ अटैच कर दीजिए। यानी कि एक वीज़ा लगा दिया आपने ऊपर, लेट से स्पेन में कब इंटर हुए थे तो स्टैंप होती है, स्पेन से कब आउट हुए तो स्टैंप होती है, वो डॉक्यूमेंट्स के नीचे लगा दें। इस तरतीब से आपके पास चार ट्रैवलिंग है, 8 ट्रैवलिंग है, उसको आपने ख्याल करना है। उसके बाद रिजेक्शन आ जाती है किसी के पास, तो फिर क्या होता है, रिजेक्शन के बाद जल्दी अप्लाई नहीं करना चाहिए। और चूँकि आप पाकिस्तान से मुख्तलिफ ममालिक में यानी कि यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड वगैरह में वीज़ा के मामलात में आप जानते हैं कि हम एकदम से एक टारगेट करते हैं, तो वहाँ पर आपने जो है देखना ये है कि उसमें आपकी क्या कमी है, वो कमी लिख के देते हैं आपको पता होता है। तो वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं उसको पूरा करें, और लगभग मेरे हिसाब से 3 से 6 महीने बेहतर होते हैं, 6 महीने बेहतर होते हैं अगर आप उसको करना चाहेंगे तो। उसके बाद जो सबसे कीमती डॉक्यूमेंट होता है उसको मैं कहता हूँ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ठीक है ना। ये वो डॉक्यूमेंट होता है जो आपका कंसल्टेंट जो है वो 99% लगाता ही नहीं है, वो क्या ज़हमत करेगा, लगाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है ना। आप मांग रहे हैं ना वो लगा रहा है। एक मैं ही हूँ जो मालूमात दे रहा होता हूँ और मालूमात देने के बाद फंसता हूँ, ठीक है ना। मैं फंसता हूँ कंसल्टेंट के सामने क्योंकि वो कहता है कि यार आपने हमारे कपड़े उतार दिए। मैं फंसता हूँ अपने लोगों के सामने क्योंकि वो कहते हैं कि जी आपको ज़्यादा बता रहे हैं। तो मेरे लिए बड़े मसले होते हैं और मेरे ऊपर शिकायतें होती हैं फिर, ठीक है ना। ज़ाहिर सी बात है कि जब मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा तो कहीं ना कहीं शिकायत भी होती है। बहरहाल अल्लाह मालिक है, वो हम जब जो कुछ लिखा हुआ नसीब में वो हो जाएगा। आप क्यों जाना चाहते हैं, आपने ये मुल्क क्यों मुंतखब किया, आपका तालीमी या पेशा वराना पस मंज़र क्या है, आपके मुस्तकबिल के मंसूबे क्या हैं, आप वीज़ा की शराइत की पाबंदी क्यों करेंगे। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ये लेट से आप स्पेन उतर गए तो मैं वीज़ा ऑफिसर हूँ, मैंने कहा आप कब वापस जाओगे, आपने बोला कि जी मैं जो है मैं
15 तारीख को निकल जाऊँगा, 10 दिन के बाद निकल जाऊँगा ऐसे। तो मैंने कहा आप इस वीज़ा की जो शराइत हैं उसकी पाबंदी आप क्यों करेंगे, आप क्यों यहाँ रुक नहीं जाएंगे, आप क्यों यहाँ पर असाइलम क्लेम नहीं करेंगे, मुझे मुतमईन करें। तो अगर ये आप उसको मुतमईन नहीं कर सकते, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही है, आप कहते हैं नहीं बस मेरा यकीन कर लें, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ रहा हूँ मेरा यकीन कर लें, ये नहीं करना, जवाब देना है उसको आपने। तो इसकी प्रैक्टिस होती है, इसकी ट्रेनिंग होती है जी, ठीक है ना। क्या सिखा रहा है आपको आपका कंसल्टेंट? बहरहाल हम तो करते हैं जी, हम तो कोशिश करते हैं कि हमारा बंदा जो है वो वापस आए और आपका जो तारुफ है, आपका मकसद, आपका पस मंज़र, मुल्क का इंतखाब, आपकी माली सूरत हाल, आपके मुस्तक़बिल के मंसूबे, आपका जो ट्रैवलिंग है उसका अख्ताम क्यों होगा, ठीक है, और वगैरह वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बहुत ख़ास हैं, ये बहुत ख़ास है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप सीखने के लिए भी इस चैनल के ऊपर सब्सक्राइब किए हुए हैं तो ये आपके लिए कीमती है। फ्री में अगर कोई आपको मशवरा मिल रहा है, मतलब मान लीजिए कि आपको मैं पसंद नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको फ्री में मालूमात मिल रही है तो नथिंग लाइक इट, ठीक है ना। हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं जो पसंद नहीं करते वो भी सीखें, ठीक है। सीखने में कभी भी आर महसूस ना करें, जहाँ से भी आपको नॉलेज मिलती है। और जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो तो खैर बादशाह हैं, उनके साथ हम जुड़े हुए हैं। जहाँ का मर्जी आप मुझे बोलेंगे ना कि विजिट वीज़ा अप्लाई करना है, तो मैं आपको जो मैंने आपको स्टूडियो में बताया है ये तमाम डॉक्यूमेंट आपके हाथ में होने चाहिए, ठीक है। तैयारी भी वैसी होनी चाहिए। अल्लाह का शुक्र है जो हमारे क्लाइंट भाई बाहर घूम रहे हैं वो हमें इन्फॉर्म करते हैं कि वो इस टाइम कहाँ हैं, उनका चेक इन हो गया है, तमाम चीज़ हो गई। मैं उनका पूछता हूँ कहाँ पहुँचे हो, चेक इन हुआ नहीं हुआ, गाड़ी का मसला तो नहीं है, कुछ भी है, तो हम जो कर सकते हैं हम करते हैं। तो लिहाजा आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ रहेंगे। अगर आप इस टाइम इस क्लिप को अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हैं तो टिकटॉक को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर मालूमात लेने कोई बात नहीं। अगर आप डिटेल से देखना चाहते हैं वीडियो को तो यूट्यूब चैनल आपके लिए बेस्ट है। चाहे आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल पे आ जाएं या आप रियल इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल पे आ जाएं, आपको एक डिटेल वीडियो मिलेगी, वो बेहतर होती है। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो भी आप मेरी कम्युनिटी हैं, मेरा हिस्सा हैं, मैं आपको भी अप्रिशिएट करता हूं कि आप इस टाइम कम से कम एटलीस्ट दुनिया का सबसे बड़ा और नेक काम कर रहे हैं, और वो है सीखने का अमल। सीखना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, और अगर किसी दिन आप नहीं सीखते तो वो दिन आपका ज़ाया काउंट होता है। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।